अबाउट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए। बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग चैप्टर है। सो टुडे वी विल डिस्कस वेरियस टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज, सो हमें पता है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज होता क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। So there are three types of charge: positive charge, zero charge, and negative charge. Positive charge means proton, zero charge means neutron, and negative charge means electron. So अगर ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। न्यूट्रॉन इट हैज नो वैल्यू। इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो चार्ज इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन and the direction of flow of electron will be negative to positive, negative to positive. So Q is equals to Ne, where N is number of electron, where N is number of electrons. So N is equals to Q by E. Its unit, charge unit, its unit coulomb. Coulomb is unit of charge. Now we will discuss about electric current. Electric current, that is I. So what do you mean by electric current? Rate of flow of charge. Rate of flow of charge का मतलब जब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। सो I इज इक्वल टू Q बाई T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। इट्स यूनिट कूलम पर सेकेंड और एम्पेयर। एम्पेयर, सो अगर एग्जाम में व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पेयर? So 1 ampere is defined as 1 coulomb charge flow in 1 second. It's called 1 ampere. And current is scalar quantity. Current is a scalar quantity. Scalar quantity. क्यों स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि करंट को हम लोग एल्जेब्रिक लॉ के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस कर सकते हैं। सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट will be positive terminal to negative terminal. If we have a cell, the direction of flow of current in a wire is positive terminal to negative terminal. डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, जबकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। ये होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो करंट हमेशा क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन के। Now we have different units. For example, 1 milliampere. So 1 milliampere is equals to 1 into 10 to the power minus 3 ampere. Similarly, 1 microampere. So 1 microampere is equals to 1 into 10 to the power minus 6 ampere. Microampere current की small value, microampere, where milliampere then ampere. तो जब भी हमें मिली एम्पियर को एम्पियर में करना है 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में करना है तो 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। नाउ अब करंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
So what do you mean by electric potential? Let us consider we have a electric field and the point A. Point A is an electric field and another point is at infinity. अगर हमने infinity पे कोई एक चार्ज Q रख दिया और उसको हमें A पॉइंट तक लाना है तो हमें कोई काम करना पड़ेगा. So work done by carrying or bringing unit charge from infinite to that point. That point means an electric field. It's called electric potential. V A infinite. तो infinite से A तक लाया तो हमने कितना काम किया? W upon Q. So work done by carrying unit charge from infinite to that point in electric field is called electric potential. Its unit volt or joule per coulomb. So electric potential is also scalar quantity. It is also scalar quantity. Scalar quantity means it has only magnitude, no direction. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. So अगर एग्जाम में है what do you mean by 1 volt or define 1 volt or definition of 1 volt. So 1 volt is equal to 1 joule work done to bring 1 coulomb charge from infinite to that point in an electric field. So what do you mean by 1 volt? 1 volt is equal to 1 joule work done to bring 1 coulomb charge from infinite to that point. It's called 1 volt. So volt and joule per coulomb both are the units of electric potential. Now we will discuss next topic, potential difference. Potential difference. तो डिफरेंस से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कोई वायर अगर होगा तो दो पॉइंट की बात करेंगे. इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट और बी पॉइंट है तो इन दोनों बीच की जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, यहाँ से यहाँ या ए से बी या बी से ए के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस बी से ए मतलब लेट अस कंसीडर कि हमारे पास बी पे कोई क्यू चार्ज है और हमें ए तक लाना है तो हमें इसका पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब डिफरेंस फाइंड करना है. तो वी बी टू ए दैट मीन्स वी बी माइनस वी ए. हमेशा याद रहे कि हमेशा पोटेंशियल जो होता है वो हाइयर से लोअर की तरफ फ्लो करता है. सो लेट अस कंसीडर कि वी बी इज ग्रेटर देन वी ए. सो वी बी ए दैट मीन्स वी बी माइनस वी ए. तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू. That means work done by carrying unit charge from one point to another in electric field. फर्स्ट में क्या था? From infinite to one point in electric field. इसमें क्या है? From one point to another point. So work done by carrying or bringing unit charge from one point to another point is called potential difference. It's also unit joule per coulomb or volt. नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अब. तो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट. So what do you mean by electric circuit? A continuous conducting path between the terminals of a source of electricity is called electric circuit. That means electric circuit का मतलब वो close path जिसकी वजह से करंट फ्लो कर सके. क्लोज पाथ होगा तभी करंट फ्लो होगा. So minimum 4 components we need to require to complete the path. That is connecting wire, cell, switch, that is key, and appliance, bulb. So these are the minimum 4 components required to complete the path, and this diagram is called circuit diagram. So a drawing showing the way
various electric devices are connected in a circuit is called circuit diagram. So minimum 4 component हमें require है. अब एक complete circuit अगर diagram बनाना है तो हमें कितने component चाहिए? Complete minimum 4 चाहिए, but we have require cell, connecting wire. अब connecting wire में ammeter यूज करेंगे, सीरीज में with resistor and potential that is V parallel यूज करेंगे. This is complete circuit diagram. This is cell, key, connecting wire, resistor, ammeter and voltmeter. Ammeter क्या है? Ammeter क्या करता है? Ammeter is a device which is used to measure the flow of current, range of current. And this is a low resistance device. Ammeter is a low resistance device. Where voltmeter is a high resistance device. Voltmeter is a high resistance device. So ammeter always use parallel with resistor, where voltmeter always use ammeter is always use series with resistor, where voltmeter is always use parallel with resistor. क्यों ऐसा क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ammeter इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस. तो अगर ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट को फ्लो होने देगा ये, जबकि वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस. अगर ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होगा तो अगर इसको हम लोग पैरेलल में यूज करेंगे तो उस समय जो भी हमारे पास यहाँ रजिस्टर होगा वो उसको एक्यूरेट मेजर कर पाएगा. बट अगर हम लोग इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो उस समय वोल्ट मीटर जब हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट के फ्लो को अपोज करेगा, और एममीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है तो अगर हम लोग उसको पैरेलल यूज करते हैं तो अगर हमारे पास इरेगुलर करंट फ्लो होती है तो उस समय एममीटर और डिवाइस डैमेज हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी कांट यूज in the place of A or V. Now, different types of element and symbol. तो इलेक्ट्रिक सेल, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होंगे तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सेल. एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बैटरी. मोर देन टू सेल इज नोन एज बैटरी. नाउ प्लग की और स्विच, तो दिस इज ओपन की, दिस इज क्लोज्ड की. ओपन की का मतलब करंट ऑफ है, क्लोज की का मतलब करंट ऑन. और वायर ज्वाइंट, दैट मीन्स हमारे पास कोई एक लाइव वायर ये दूसरा लाइव, वो दोनों को ज्वाइन किया गया इस पॉइंट से. क्रॉस विदाउट ज्वाइनिंग, अगर हमारे पास कोई दो वायर है वो विदाउट ज्वाइनिंग पास हो रहा है, मतलब दोनों में अलग अलग करंट फ्लो हो रही है. नेक्स्ट बल्ब, दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब. रजिस्टर, दिस इज सिंबल ऑफ रजिस्टर. तो रजिस्टर क्या होता है? इट इज डिवाइस विच यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट. वेयर वेरिएबल रजिस्टर और रियोस्टेट. वेरिएबल रजिस्टर क्या करता है? करंट की स्ट्रेंथ को चेंज करने में काम आता है इसका, मतलब हम लोग इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट एममीटर, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. एममीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट and it is a low resistance device and always used series with resistor, where voltmeter is a high resistance device always used parallel with resistor and to find potential difference, to measure potential difference between two ends.
So these are the basic topics. Now, most important topic in this chapter is Ohm's law. तो हम लोग अब बात करेंगे ओम्स लॉ की। अगर ओम्स लॉ समझ में आ गया तो आपको 60% चैप्टर समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। सो व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ? तो theory, according to Ohm's law, the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across the ends, provided its physical condition remains same. That means अगर physical condition constant है, physical condition क्या होता है? Pressure, temperature, humidity, these are the physical condition. अगर physical condition constant है तो उस समय flow of current that means I is directly proportional to potential difference of the ends, मतलब V proportional to I or I proportional to V. So V proportional to I or I proportional to V. So V is equals to Ri, where R is called constant. So R is equals to V upon I, where R is called constant and resistance. So what do you mean by resistance? जो resist करे मतलब which opposes the flow of current. So resistance is the property which opposes the flow of current and resistor is a device. So its unit ohm or volt per ampere. Its unit ohm और वोल्ट पर एम्पियर और हमेशा क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। एक इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है ओम्स लॉ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, ओमिक सब्सटेंस एंड नॉन ओमिक सब्सटेंस, ओमिक सब्सटेंस एंड नॉन ओमिक। तो नाम से समझ में आ रहा है ओमिक सब्सटेंस है दैट मीन्स ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, नॉन ओमिक है मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो जितने भी कंडक्टर्स होंगे वो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे और अगर ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे तो इनका जो ग्राफ बनेगा वी आई ग्राफ, ये वी हो गया, ये आई होगा। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और हमेशा ओरिजिन से पास होगा। जबकि जो नॉन ओमिक सब्सटेंस होंगे वो क्या हो सकते हैं? सेमीकंडक्टर हो सकता है, इंसुलेटर होगा। तो उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ नॉन लीनियर हो सकता है या ओरिजिन से पास नहीं होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेमीकंडक्टर। सो ओमिक सब्सटेंस, व्हाट डू you mean by omic substance? So omic substance are those substance which follows obey Ohm's law, where non-ohmic substance are which do not obey Ohm's law. So these are the difference between ohmic and non-ohmic. So Ohm's law is not a fundamental law. Ohm's law is not fundamental law. फंडामेंटल फंडामेंटल लॉ क्या होता है? वो लॉ जो हर जगह सेटिस्फाई करे, बट ओम्स लॉ हर जगह वैलिड नहीं है। सो ओम्स लॉ नॉट अ फंडामेंटल। अब इसमें वर्ड आया था रेजिस्टेंस। अगर एग्जाम में है व्हाट डू यू मीन बाय 1 ohm? So 1 ohm is defined as the ratio of 1 volt to 1 ampere. It's called 1 ohm. So ohm is the unit of resistance. Now we will discuss different types of VI or IV graph. Now different types of graph. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ की अगर बात करें तो अगर हमने वी आई ग्राफ की बात की
वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ का मीन्स वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो वी वाई एक्सिस पे है और आई एक्स एक्सिस पे। तो इसका जो स्लोप होगा वो आर होगा, दिस इज थीटा। स्लोप मतलब थीटा। तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होगा। स्लोप जो होगा वो हमारा वी अपॉन आई होगा। बट अगर हमने सेम यही बोला होता आईवी ग्राफ, आईवी ग्राफ, आईवी ग्राफ मीन्स हमारा वाई एक्सिस पे आई है और एक्स एक्सिस पे वी है। तो उस समय हमारा जो स्लोप होगा वो 1/r होगा और उस समय आई बाई वी होगा। सो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी एग्जाम में ये वी आई दिया होता है या आई वी दिया होता है, तो हमें ध्यान से देखना होगा कि वो वी आई की बात कर रहा है या आई वी की बात कर रहा है। अगर वो आई वी है तो स्लोप हमारा 1/r होगा, जबकि अगर वो वी आई है तो स्लोप हमारा आर होगा। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। ओम्स लॉ, हमें क्वेश्चन में ऐसे एक टेबल दी होगी जहां पे वी और आई की वैल्यू दी होगी। दिस इज वी, दिस इज आई। Let us consider we have V and I values 5, 10, 15, 20, 25, 2, 4, 6, 8, 10. Now, firstly, draw VI graph. So VI graph means हमने y एक्सिस पे ले लिया v और x एक्सिस पे ले लिया I. This is VI graph. Now V 5, 10, 15, 20, so on. I 2, 4, 6, 8, 10। इसको पॉइंट करेंगे तो हमेशा x पे y देखते हैं, I पे v। सो 2 पे 5, दिस इज 2 पे 5। नेक्स्ट 4 पे 10, 4 पे 10, 6 पे 15, 8 पे 20। सो दिस इज a linear graph. Now we need to prove this स्टेटमेंट की फिजिकल कंडीशन सेम होगा तो वी आई की प्रोपोर्शन होगा। सो अगर हम कंसीडर करें कि V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, दिस इज V1, V1, V2, V3, V4, this is I1, I2, I3, I4, I5। देन स्लोप थीटा क्या होगा, R1 की बात करते हैं तो R1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V अपॉन I। सो V अपॉन I मीन्स difference of V1 minus 0, V1 minus 0, initial 0, upon I1 minus 0. So V1 is 5 minus 0 upon I1 is 2 minus 0. That is 2.5. So यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आ गया 2.5. Now we will find R2. तो R2 is V2 minus V1 final minus initial upon
I2 minus I1. So V2 is 10 volt minus V1 is 5 volt upon I2 is 4 ampere where V1 is 2 ampere. That means 5 by 2. This is also 2.5 and so on. All the values will be 2.5. So this graph shows V proportional to I if physical condition remain same. अगर हमारा फिजिकल कंडीशन सेम है तो V हमेशा I के प्रोपोर्शन होगा, उसका ग्राफ जो होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा. Hence Ohm's law verified for conductor. Hence Ohm's law verified. आई होप आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया हो. फिर भी अगर नहीं आया तो वी विल डिस्कस. बाकी आपको पढ़ना होगा, आपने नहीं पढ़ा तो एग्जाम में आप मुंह बैठ जाएंगे. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. So resistance depends on length of the wire. R is directly proportional to L. Resistance is depend area of cross section area of the wire, that is inversely proportional to A. R is inversely proportional to A. And resistance also depend the temperature. तो R is directly proportional to T. अगर L लेंथ के हमारे पास वायर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब दिस पाई आर स्क्वायर. तो हमेशा अगर हम लोग थिकनेस बढ़ाएंगे, थिकनेस का मतलब दिस, अगर हम लोग रेडियस बढ़ाएंगे या थिकनेस बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा. वेयर लेंथ थिननेस बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा. और ये सब कंडीशन कब लाई करेगा? ओनली फॉर ओमिक सब्सटेंस, दैट इज कंडक्टर. इंसुलेटर का भी कंडीशन होती है और सेमीकंडक्टर की भी होती है, बट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली फॉर कंडक्टर. सो R is equals to rho L by A, where R is resistance, L is length of the wire, A is cross section area, rho is resistivity. So R is equals to rho L by pi R square. हो सकता है क्वेश्चन में डायमीटर दिया हो. सो R is equals to rho L upon pi. R को हम लोग क्या लिख सकते हैं? R को लिख सकते हैं हम लोग D by 2. तो D by 2 का स्क्वायर. सो इसका अगर फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो R is equals to 4 rho L by pi D square, where D is diameter, R is radius, L is length, A is area, T is temperature. So इसी पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास 3 वायर है और तीनों का VI ग्राफ है, तीनों का टेम्परेचर दिया हुआ T1, T2, T3, तो किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? सो वी नो दैट जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. सो R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3. कंडीशन क्या है? VI ग्राफ होना चाहिए. अगर ये IV ग्राफ होता और कंडीशन IV ग्राफ, सो R3 is greater than R2 is greater than R1 for IV graph. For IV, R3 is greater than R2 is greater than
R1, क्योंकि वहां पे स्लोप क्या होता है 1/r होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है रो, तो व्हाट डू यू मीन बाय रो? सो R is equals to rho L by A, where rho is the symbol of resistivity. Resistivity. तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी बताता है। मतलब rho is a constant of proportionality called specific resistance or resistivity of material of the conductor. मतलब ये किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी बताता है, या इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इट्स एसआई यूनिट ओम मीटर। तो एग्जाम में है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी, तो इसको आप न्यूमेरिकली भी डिराइव कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, सो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो अगर हमें डिफाइन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर when its cross section area is 1 unit, that is 1 meter square, and its length is 1 unit. 1 means 1 meter. So अगर किसी वायर का, अगर हम लोग कोई वायर लें और इसका लेंथ L जो है वो 1 मीटर हो जाए और इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो हमेशा रो जो होगा वो आर के इक्वल होगा। एंड रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द डायमेंशंस ऑफ द वायर। रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ पे या एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि अगर हमारे पास मटेरियल डिफरेंट है, तो अगर एक 2 मीटर का लेंथ है या 10 मीटर का लेंथ है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी वही होगी, जो 2 मीटर की होगी या 10 मीटर की होगी। सिमिलरली अगर हम थिकनेस की बात करेंगे, तो रेजिस्टिविटी हमेशा, चाहे वो 2 मीटर स्क्वायर उसका एरिया हो या 4 मीटर स्क्वायर हो, दोनों की रेजिस्टिविटी वही होगी। मतलब सेम मटेरियल, अगर हमारे पास कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर अगर होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी हर कंडीशन में सेम ही होगी, चाहे वो 1 मीटर का हो या 10 मीटर का वायर हो। गॉट इट? तो दीज आर द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस सब हम लोग डिस्कस कर चुके। नाउ वी विल डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ वी विल डिस्कस combination of resistance. So there are two types of combination of resistance. Combination of resistance. First, series combination. Second, parallel combination. So series combination क्या होता है, parallel combination क्या होता है? So कुछ theory है, the current flowing through each resistor is same, potential difference across the end series combination is distributed, that is different, and equivalent resistance हमेशा क्या होता है, sum of individual resistance, and equivalent resistance is always greater than the resistance in this combination. We need to prove all these statements. So let us consider we have a different resistors R1, R2, having resistance R1, R2 and R3. तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसमें हमें क्या करना है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, R1, नेक्स्ट दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, I2, next this is negative, this is positive. So in series combination, negative terminal of second resistor connected with positive terminal of first resistor. Similarly, negative terminal of third resistor connected with positive terminal of first resistor, and so on. So this type of combination is called series combination.
So in series combination we obtain maximum resistance, और अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा तो इसका मतलब करंट जो है उस समय मिनिमम होगा, एंड करंट विल बी सेम फॉर ईच रजिस्टर। मतलब अगर करंट यहाँ फ्लो हो रही है तो अगर यहाँ पे 5 वोल्ट दिया हुआ है, अगर यहाँ पे करंट जितनी जा रही है मान ली 2 एम्पीयर जा रही है, उतनी करंट यहाँ होगी R1 पे, उतनी R2 पे, उतनी R3 पे। जबकि पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ पोटेंशियल V2 होगा, और यहाँ पोटेंशियल V3 होगा। इस जितने भी रेजिस्टर्स होंगे सबकी अपनी इंडिविजुअल पोटेंशियल होगा। सो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेट पोटेंशियल V equivalent is equals to V1 plus V2 plus V3 डॉट Vn। जितने भी रेजिस्टेंस उतने पोटेंशियल। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ we know that V is equals to IR। so V equivalent की वैल्यू क्या हो जाएगी? R equivalent is equals to IR1 plus IR2 plus IR3 so on IR, and not taking I common, तो R equivalent is equals to R1 plus I2 plus R3 dot Rn। current will be same for each resistor। करंट यहाँ पे क्या होगा? सेम। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट Rn। सो R equivalent always greater than R1 or R2 or R3 so on। so equivalent resistance is always greater than the individual resistance। वहां पर जितने भी रेजिस्टेंस होंगे हमेशा इक्विवेलेंट ज्यादा हो, जाहिर सी बात है सम करेंगे तो ज्यादा ही होगा। तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो इससे हम लोग हमेशा मिनिमम करंट फाइंड करते हैं। to find minimum current we use series combination। so what do you mean by series combination? Equivalent resistance is always equal to sum of individual resistance, and in this combination negative terminal of second resistor connected with positive of first resistor, similarly negative of third resistor connected with positive of second resistor, and so on। नेक्स्ट अब बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, so what do you mean by parallel combination? Let us consider we have the resistance R1, R2, R3। so in parallel combination we have R2, R1, R3, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सारे टर्मिनल के पॉजिटिव मतलब सारे रजिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ, सारे रजिस्टर के नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ, और इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, सेल और बैटरी से। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। एमीमीटर सीरीज में और वोल्टमीटर पैरेलल में। डिफरेंस क्या है दोनों में? उसमें क्या था? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें सारे पॉजिटिव एक तरफ सारे नेगेटिव एक तरफ। but in this combination potential will be same for each resistor and current will be different। अब इसमें क्या होगा? करंट सबके लिए अलग होगा बट पोटेंशियल सबके लिए सेम होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? नेट करंट की बात करेंगे।
वहां पे करंट सेम था तो हमने नेट वोल्टेज की बात की। यहाँ पे वोल्टेज सेम है, वी सेम, तो हम लोग नेट करंट की बात करेंगे। तो नेट करंट आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 plus I2 plus I3 dot 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 IN. Similarly, according to Ohm's law, we know that I is equals to V by R. Ohm's law. So V upon R equivalent is equals to V upon R1 plus V upon R2 dot 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 V upon Rn. Now taking common V, we will get 1 upon R equivalent is equals to 1 upon R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट डॉट 1 अपॉन Rn। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो उस समय रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, एंड इन दिस कॉम्बिनेशन equivalent resistance is always less than the individual resistance. So to obtain maximum current, we will use parallel combination. जितने भी हमारे घरों में अप्लायंस लगे होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक भी हमारा फ्यूज हुआ तो दो अदर जो भी हमारे पास अप्लायंस है उस पर इफेक्ट ना हो, इसीलिए जो भी हमारे पास घर में यूज होता है वो पैरेलल। इंडिया में जो हमारा एसी करंट यूज होता है उसमें 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी यूज होगी और वी जो होता है वो 220 वोल्ट होता है। These are the frequency and volt we will use in इंडिया, और हम लोग इंडिया में यूज करते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे तो कहाँ पे यूज होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक लॉन्ड्री आयरन टोस्टर ओवन केटल एंड हीटर सम डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्यों? क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मीन्स ये है कि अगर हम करंट पास करेंगे तो हमारे पास वो अप्लायंस जो उसको यूज करके क्या करे, लाइट प्रोड्यूस करे या हीट करे, हीट प्रोड्यूस करे। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इलेक्ट्रिक बल्ब। क्योंकि हमें पता है कि बल्ब में हमारे पास वायर यूज होता है जिस वायर को बोलते हैं हम लोग टंगस्टन वायर। टंगस्टन वायर टंगस्टन वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगी तो ये करंट पास होगा, और जब पास करेगा तो ये ऐसा रजिस्टर होगा कि ये हीट करेगा, और जब हीट करेगा तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। सो दैट्स वाई वी विल यूज टंगस्टन इन bulb. So another application of Joule's law of heating is the फ्यूज सर्किट। फ्यूज सर्किट में भी हम लोग जूल्स लॉ का इफेक्ट करते हैं। अगर अप्लायंस बहुत ज्यादा पावर उसको मिल जाएगा तो उस समय क्या होगा कि फ्यूज में एक एलॉय लगा होगा और वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, अदरवाइज पूरा अप्लायंस डैमेज हो जाएगा। सो नाउ वी विल डिस्कस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एच क्या यहाँ पे, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मतलब करंट के स्क्वायर के। H is directly proportional to R के रेजिस्टेंस के, और H is directly proportional to T. So H is proportional to I square, H is proportional to R, H is proportional to T. So H is equal to होता है I square I T। अगर हम लोग ओम्स लॉ की बात करें तो उस T क्या है, टाइम। तो अगर हम लोग ओम्स लॉ की बात करें तो I को V by R लिख सकते हैं। So I is equal to V by R, that's why H is equals to V square अपॉन RT। ये भी एक फॉर्मूला होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। सो इट्स यूनिट टू जूल, क्योंकि हमें पता है कि H क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी जो है वर्क है। वर्क एनर्जी में डिफरेंस क्या है, वर्क हमेशा हम लोग डन करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क और वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो दोनों वैसे वर्सन। सो H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन RT। तो अब यहाँ बात करेंगे एनर्जी की। अगर बात करें तो E इज इक्वल टू पी इंटू टी अपॉन 1000 भी होता है। ये भी फॉर्मूला पे याद कर लीजिए, P इज इक्वल टू पी इंटू टी अपॉन 1000। यहाँ में जो टी होगा वो सेकेंड में यूज करेंगे हम लोग, सेकेंड में। बट यहाँ जो टी यूज होगा वो आवर्स में यूज होगा, आवर्स में। क्यों आवर्स में हुआ?
क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉमर्शियल यूनिट की बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो के डब्ल्यू एच कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 kWh जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये याद रहना चाहिए आपको। तो जब भी फॉर्मूला आया तो सीधे लगाएंगे हम लोग E इज टू पी इंटू टी अपॉन 1000। तो अगर ये आर से होगा, पी यहाँ पे हम लोग वॉट में रखेंगे, तो आंसर क्या आएगा 1 kWh, दैट इज 3.6 जूल। अब तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी पे बेस टॉपिक्स थे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जो जो टॉपिक आते हैं वो हमने कवर किए। नाउ जितने भी टॉपिक्स थे उस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल कैसे क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग कैसे आते हैं, शॉर्ट कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो अगर आपने इसको ध्यान से समझा तो कोई भी ऐसा बाहर से क्वेश्चन बोर्ड का नहीं आएगा जो आप ना कर पाए। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको उसको ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था चार्ज, Q is equals to Ne, where N is number of electron और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने बताई थी आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर 1 कूलम की बात करें तो 1 कूलम इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1 कूलम में, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो 1 into 10⁻19 on 1.6। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.25 into 10⁻18। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर क्वेश्चन हमें फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5 कूलम ऑफ चार्ज, तो अगर 1 कूलम में हमारे पास 6.5 10⁻25 सॉरी 6.25 इंटू 10⁻18 है, तो 5 कूलम में कितना हो जाएगा, सीधे 5 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 5 कूलम ऑफ चार्ज। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो व्हाट डू हाउ डू वी कनेक्ट वोल्ट मीटर एंड एमीटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट and what is likely to happen in the position of these instruments are interchanged। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमें पता है कि वोल्ट मीटर जो होता है वो, दिस इज वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज यूज्ड पैरेलल विथ रजिस्टर और रेजिस्टेंस। सिमिलरली एममीटर क्या होता है, इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस और यूज्ड सीरीज with register। So वोल्ट मीटर का यूज किया टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स और एमीटर का यूज किया है टू फाइंड मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। तो हमेशा हम लोग वोल्ट मीटर को कैसे यूज करते हैं, पैरेलल विद रजिस्टर वेयर एमीटर इज सीरीज। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग इसकी पोजीशन चेंज कर दें, तो अगर पोजीशन चेंज कर देंगे तो उस समय दिस इज सर्किट डायग्राम। दिस इज सर्किट डायग्राम। तो एमीटर हम लोगों ने किससे ऐड किया, सीरीज में, सीरीज।
और वोल्ट मीटर हमने कैसे यूज किया है? सो मीटर को हमने सीरीज में यूज किया और वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में यूज किया। तो क्यों यूज किया? क्योंकि मीटर जो होता है लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट को क्या करेगा, ये मेजर कर पाएगा और मिनिमम से मिनिमम करंट को ये डिटेक्ट कर पाएगा। सिमिलरली वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, उसको अगर हम लोग पैरेलल में यूज करेंगे तो अगर हमारे पास करंट इरेगुलर वे में फ्लो हो रहा है तो उस समय भी जो होगा उसको पोटेंशियल मेजर कर पाएगा। अदरवाइज अगर हम लोग दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो वोल्ट मीटर यहाँ हाई रेजिस्टर हो जाएगा और जब हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होगा तो करंट के फ्लो को अपोज करेगा, तो एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएगा। जबकि मीटर को हम लोग पैरेलल यूज कर ले तो लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, अगर लो होगा तो जो इरेगुलर करंट फ्लो होगी वो उसको मेजर नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि वो उस समय डैमेज हो जाए, क्योंकि इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। A bulb cannot be used in the place of resistor to verify Ohm's law. Justify this statement. हमने अभी बताया था आपको कि Ohm's law जो होता है वो only valid for conductor and जब भी हम लोग कंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें V प्रोपोर्शनल टू I होता है। कंडीशन क्या है? टेम्परेचर, उस समय टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी सब क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर हम बल्ब की बात करेंगे तो बल्ब इज अ डिवाइस, bulb is a device which convert light energy, मतलब current which convert electricity into light। क्यों? क्योंकि जब हम करंट पास करते हैं तो इस समय जो हमारे पास जो वायर इसमें यूज होती है, टंगस्टन वायर, वो क्या करता है? हीट करती है, और जब वो हीट करेगी तो ग्लो करेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हीट करेगा और ये ग्लो करेगा। सो इस कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। दैट्स व्हाई bulb we can't use in the place of register. Next question. State the type of combination used for connecting different electric appliances in the domestic circuit. So domestic circuit में हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमारे पास एक बल्ब अगर हमने यहाँ ज्वाइन किया है, दूसरा बल्ब हमने यहाँ ज्वाइन किया है और तीसरा यहाँ ज्वाइन किया है, तो अगर कभी भी सर्किट ब्रेक होगा क्योंकि करंट यहाँ से पास होगी, V सबके लिए सेम है, तो अगर ये सर्किट ब्रेक होगा तो इन दोनों में करंट फ्लो होगी और इन दोनों में करंट फ्लो होगी तो इसका इस बल्ब से कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर हम लोगों ने इसको सीरीज में कंबाइन किया तो अगर एक फ्यूज होगा तो अपने आप करंट फ्लो बंद हो जाएगा और हो सकता है कि अगर एक डैमेज हो तो सारे बल्ब डैमेज हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई इन डोमेस्टिक we will use parallel combination. Next question. We have two students perform the experiment on series and parallel combination of two given resistors R1 and R2 and plot the graph VIR. So which in two diagrams correctly represent the level series and parallel on the plotted curve. So हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर ये VI ग्राफ है तो अगर सीरीज की बात करेंगे तो R इक्विवेलेंट हमेशा क्या होगा? R equivalent is greater than individual R1 और R2, जबकि सीरीज, और जब भी हम लोग R equivalent पैरेलल की बात करेंगे तो उस समय R जो होगा वो क्या होगा? लेस देन R1 और R2 होगा। सो अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, तो अगर स्लोप ज्यादा होगा तो ये फर्स्ट वायर जो होगा वो R1 जो होगा वो सीरीज होगा और R2 जो होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सिमिलरली अगर ये हमारे पास IV ग्राफ होता
IV। तो इस कंडीशन में हमारा जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो पैरेलल होगा और जिसका स्लोप कम होगा वो सीरीज होगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में स्लोप जो हमारा होगा वो 1/r होगा। तो 1/r की अगर हम बात करेंगे तो उस समय जिसका स्लोप कम होगा, लेस स्लोप विल बी सीरीज एंड ग्रेटर स्लोप विल बी पैरेलल। कंडीशन क्या है? IV ग्राफ। बट अगर VI ग्राफ होगा तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो सीरीज में होगा, जिसका स्लोप कम होगा वो पैरेलल में होगा। सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट कर्व विल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the following. Copper and aluminum wire are employed for electricity transmission. तो हमें पता है कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम बोथ आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें रेजिस्टेंस कम होता है और फ्लो ऑफ करंट की टेंडेंसी ज्यादा होती है क्योंकि इज अ कंडक्टर। तो अगर कंडक्टर होगा तो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा। तो अगर आसानी से करंट फ्लो होगा तो इसलिए कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द good for electricity will use. Now, heating devices are made of an alloy rather than a pure metal. अगर वो प्योर मेटल होगा तो जब भी हीटिंग इफेक्ट होगा तो वो मेल्ट नहीं होगा, और मेल्ट नहीं होगा तो उस समय क्या होगा? फ्यूज नहीं होगा और अप्लायंस हमारा डैमेज हो जाएगा। जबकि अगर वो एलॉय है, एलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ मेटल्स, अगर वो एलॉय होगा तो उस समय अगर वो हीट होगा तो उस समय वो ब्रेक हो जाएगा, फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, और फ्यूज ब्रेक होगा तो सर्किट ब्रेक होगा और उस कंडीशन में अप्लायंस हमारा डैमेज नहीं होगा। तो इस समय जो घरों में फ्यूज होते हैं यूज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? MCB बोलते हैं। MCB मीन्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पहले ऐसा यूज होता है कि अगर हमारे पास दो ऐसे होते थे दिस, और इसमें वायर लगी होती थी एलॉय, वो ब्रेक हो जाती थी, हीट हीट होने के बाद ही डैमेज होती थी, ब्रेक। बट अब MCB होता है, जैसे ही हमारे पास ज्यादा हीट होता है तो वो MCB क्या होती है? गिर जाती है। MCB गिर जाएगी तो उस समय क्या होगा? अप्लायंस डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक, two metallic wire. Next question, two metallic wires of the same material are connected in parallel. So we have a one wire and two wire. दोनों सेम मटेरियल के, मतलब इसकी रेजिस्टिविटी रो है, इसकी भी रेजिस्टिविटी रो है। वायर A, this is wire A, this is wire B. Wire A has length L, its length L, and its radius R, where radius means this, or its length wire B 12 and its radius 2r. So calculate the ratio of equivalent resistance in the parallel combination and that of the wire A. So we need to find, let us consider its resistance R1 and its resistance R2. For wire A, resistance R1, for wire B, resistance R2. So we know that R1 is equal to rho L by A. So R1 is equal to rho L upon pi r square. ये होगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। फॉर वायर बी, R2 is equal to rho L is 12 upon pi r is 2r square. So R2 is equal to rho into 12 upon 4 pi r square. So 2 से 2 cancel. Now dividing both the equation, R1 upon R2 is equal to rho L upon pi r square upon rho L upon 2 pi r square. Rho L से rho L cancel, pi r square से pi r square cancel. So R1 upon R2 is equals to 2. So R1 is 2 times of R2. R1 is 2 times of R2. Now, so R1 is 2 times of R2
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो आर 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2. So 1/r equivalent is equals to 1/r1, that means 2r2 plus 1/r2. So 1/r equivalent is equals to 2r2 LCM हो गया. तो क्या होगा यहाँ पे 1 plus 2, that is R equivalent is 2r2 by 3, 2 by 3 of r2, और R equivalent is equals to 2 by 3 into R2 is R1 by 2. So R1 by 2. So R equivalent is equals to R1 by 3. According to question, we need to find the ratio of parallel combination to the wire of A. So R equivalent upon R1 is equals to 1 upon 3. So 1 is to 3 will be answer. Now, next question is match the correct range of resistivity of the material. तो हमने बताया था कि कंडक्टर अगर है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो उसकी जो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होगी वो कम होगी. तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, सबसे कम मतलब -6 से लेके -8 ओम तक. तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड. एलॉय की रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर -6 और इंसुलेटर की 10 टू द पावर 12 से लेके 10 टू द पावर 20 ओम मीटर तक होगा. सो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो होती है कंडक्टर की क्या होगी, सबसे क्या होगी, कम होगी. उसके बाद रेजिस्टिविटी एलॉय की होगी. उसके बाद रेजिस्टिविटी किसकी होगी, इंसुलेटर की होगी. एंड रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी. डिराइव एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सीधे हमें पता है H इज इक्वल टू होता है V इंटू आई इंटू टी. ये H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी कहाँ से है, क्योंकि हम लोग 9 में पढ़ चुके हैं पावर. तो P इज इक्वल टू होता है W अपॉन टी. तो जो W है वो हीट, तो हीट अपॉन टाइम. सो H इज इक्वल टू P इंटू टी. सो H इज इक्वल टू P होता है V इंटू आई. तो V इंटू आई इंटू टी. नाउ ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई है. सो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और H is equals to I is equals to V by R, so V square upon T. So these are the expression for Joule's law of heating. And two examples of heating effect of current, bulb हो गया and bulb, iron और twister, कहीं हम लोग इसका यूज करते हैं. Now next question is a wire of resistivity rho is stretched to double of its length. हमारे पास अगर एक L लेंथ की वायर है और इसको हमने स्ट्रेच करके डबल कर दिया, मतलब हमारे पास न्यू लेंथ जो होगी वो 2 टाइम्स ऑफ एल. तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा और रेजिस्टिविटी क्या होगी. तो हमेशा ये बात याद रहे कि अगर हमारे पास ये पेन है और ये एल लेंथ का, अगर हमने इसको स्ट्रेच करके डबल किया, तो अगर स्ट्रेच करके डबल करेंगे तो इसकी जो थिकनेस है वो हाफ हो जाएगी. सो अगर एरिया इसका ए है तो इसका ए डैश जो होगा वो ए बाई 2 होगा. सो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, where R dash is equals to rho L dash by A dash. So R dash is equals to rho L dash को हम लिख सकते हैं 12 और एरिया को V by 2. So R dash is equals to 4 rho L by A, और 4 rho L by A हमारा क्या है, R है.
तो R डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R। सो अगर किसी वायर का अगर हम लोग लेंथ 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो उसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली ये स्ट्रेच की कंडीशन है। अगर हम लोग यही क्वेश्चन होता अगर 3 टाइम्स स्ट्रेच करते तो R डैश जो क्या होता वो 9 टाइम्स ऑफ R हो जाता। सो डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, जब भी स्ट्रेच की कंडीशन होगी तो R डैश जो हो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। जैसे अगर हमने बोला कि हमने स्ट्रेच करके डबल किया तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी R, डबल किया तो 4 टाइम्स ऑफ R, 3 टाइम्स स्ट्रेच किया तो 9 टाइम्स, 4 टाइम्स स्ट्रेच किया तो 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा। बट अगर यही क्वेश्चन होता और हम लोग ये कंडीशन क्या थी, स्ट्रेच की बात हो रही थी, अगर बेंड की बात होती, सेम यही क्वेश्चन अगर बेंड की हम बात करते हैं तो बेंड का मतलब अगर हमारे पास एल लेंथ का इसको हमने बेंड कर दिया तो यहाँ पे एल डैश जो होगा वो L/2 हो जाएगा, लेंथ आधी होगी और एरिया डबल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आर डैश जो होगा वो 1/n स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर होगा। मतलब जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा 1 स्क्वायर टाइम्स आ जाएगा। मतलब सिर्फ अगर हमने बेंड करके डबल किया तो 1/4 हो जाएगा, हमेशा 1/n टाइम्स स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर में जितने भी थ्योरी थे या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं ये इंपॉर्टेंट। सो वी हैव अ क्वेश्चन, 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ट्रांसफरिंग 20 कूलम। मतलब W दिया हमारे पास 100 जूल, Q दिया है हमारे पास 20 कूलम of charge between 2 points of conductor. Now find the resistance offered by a conductor. We need to find R, and if a current of 2 ampere flows through it, I क्वेश्चन में गिवन है 2 एम्पियर। तो सीधे V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, तो यहां से हम लोग पोटेंशियल निकाल लेंगे 100 अपॉन 20। सो 5 वोल्ट, 5 वोल्ट इज पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर, और R इज इक्वल टू होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो V is 5 upon I is 2, that is 2.5 ohm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 से 3 मार्क्स में हमेशा आता है क्वेश्चन। मेन इसमें कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन आपको आता है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। सो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल मेटल वायर ऑफ लेंथ L is 2 meter and area is 1.55 into 10 to the power minus 6 meter square, and its resistivity given rho is equals to 2.8 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Now we will find resistance। तो हमने पहले पढ़ा है R is equals to rho L by E। So R is equals to rho is 2.8 into 10 to the power minus 8 into L is 2 upon cross section area 1.55 into 10 to the power minus 6। सबसे पहले हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सबसे पहले पावर को सॉल्व करनी है, और अगर नंबर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.8 इंटू 2 दैट इज 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, अगर ये माइनस 6 ऊपर जाएगा तो प्लस 6, साइन चेंज प्लस 6 अपॉन 1.55। So R is equals to 5.6 upon 1.55 into 10 to the power minus 2. Then R is equals to 3.61 into 10 to the power minus 2 ohm. This is the value of resistance. इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमेशा लेंथ मीटर में होना चाहिए, एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, रेजिस्टिविटी ओम मीटर में होना चाहिए।
अगर ये इसमें नहीं है तो हम इसे स्टैंडर्ड में करेंगे। हो सकता था क्वेश्चन में लेंथ जो था वो सेंटीमीटर में था, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, सीधे जो भी वैल्यू दी है वो क्या करना है, इंटू 10⁻⁻2 कर देना है। और अगर एरिया दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, एरिया में 1 × 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देना है, अगर वो सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता था क्वेश्चन में रेडियस दिया होता, तो रेडियस दिया होता अगर, हो सकता है रेडियस में दिया होता, तो हमें में चेंज, मीटर में चेंज करना है, तो 1 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। और फॉर्मूला क्या यूज करना है, R = रो L/πr²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर गिवन रेडियस ऑफ द वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A battery of 12 volt connected to series combination 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm and 12 ohm. How much current would flow through 12 ohm resistance? यहाँ पे करंट कितना होगा, तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सबके लिए करंट सेम होगा, और क्वेश्चन में भी कितना दिया है, 12 वोल्ट। So we know that R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4. So R equivalent is equals to 3 plus 4 plus 5 plus 12. So R equivalent is equals to 12 plus 12, that is 24 ohm. So I is equals to V by R according to Ohm's law. V is 12/24, 0.5 एम्पियर। तो अगर एक इसमें 0.5 एम्पियर की करंट जा रही है तो वही करंट यहाँ होगी, वही करंट यहाँ होगी। ईच रजिस्टर के लिए सेम, सब जितने भी रजिस्टर है सबके लिए करंट 0.5 एम्पियर है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल सबका अलग अलग हो। यहाँ V = IR के अकॉर्डिंग हम लोग V सबका अलग अलग निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L रेडियस R हैज रेजिस्टेंस 10 ओम। रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास 10 ओम। हाउ वुड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज, ओनली डायमीटर इज डबल। सो R = रो L/A। अब क्वेश्चन में क्या है, डायमीटर को डबल कर दें, अगर डायमीटर डबल होगा, एक D डैश इज 2 टाइम्स ऑफ D, सो R डैश इज ऑल्सो 2 टाइम्स ऑफ R। अगर डायमीटर डबल होगा तो रेडियस भी डबल होगा, तो उस कंडीशन में R = रो L/π R² is the formula. So R dash is equals to रो L/π 2R का स्क्वायर। सो R डैश कितना हो जाएगा, R डैश इक्वल्स टू रो L/4 पाई R², और रो L/π R² क्या है, R। तो R डैश इज R/4, वहां पर रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। तो R dash is equals to 10/4, that is 2.5 ohm. New resistance will be 2.5 ohm. अगर हम लोग डायमीटर को डबल कर दें तो रेडियस भी डबल होगा, अगर रेडियस डबल होगा तो न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो ओरिजिनल का 1/4 हो जाएगा। बस कंडीशन यहाँ पे ये है कि केवल हम लोग डायमीटर को डबल कर रहे हैं, इसके लेंथ से कोई मतलब नहीं, वो कांस्टेंट है। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन, only length of the wire is double. So length of the wire is double, तो R dash is equals to रो L/A। अब यहाँ पे L जो है वो L dash, तो R dash is equals to रो into 2L/A। अब यहाँ पे रो L/A कितना होगा, R dash is 2 times इनको 10 कर देंगे, ये R हो गया, तो R dash is 20। तो अगर हम लोग लेंथ को डबल करेंगे तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो भी डबल हो जाएगा। कंडीशन सेम वायर, मतलब सेम एरिया है, यहाँ पे एरिया यहाँ पे कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स बोर्ड एग्जाम। टू डिवाइसेस रेटिंग
P1 is 44 watt, V1 is 220 volt. Similarly, P2 is 11 watt, V2 is 220 volt, are connected in series. The combination is connected across 440 volt. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे R1 निकालेंगे, तो P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R1. सो P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन R1. तो P R1 लिखना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन P1. तो V1 कितना है हमारे पास 220, तो 220 इंटू 220 अपॉन P1 that is 44 watt. So R1 will be 1100 ohm. अब R2 की बात करते हैं. Similarly R2 is equals to 220 into 220 upon 11 that is 4400 ohm. तो सीरीज में कंबाइन है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 that is 1100 plus 4400. So 5500 will be total equivalent resistance. Now total current कितना होगा? So I is equals to V by R. तो हमारे पास 440 volt upon 5500. 0.8 ampere. So total current will be 0.8 ampere. Now we will find voltage. So V is equals to IR. So V1 is equals to I is 0.8 into R is 1100. So this is so 4 upon 50 is 0.08 ampere. So V1 is IR1. So I is 0.08 into 1100. So 88 volt. Similarly, V2 is equals to I 0.08 into I2 is 4400. So 352 volt. Now we have voltage 220 volt, but यहाँ पे कितना है 352 volt. So in this condition, second device is likely to be burn when switch is on. क्योंकि यहाँ पे V2 जो है वो greater है 220 volt से. Next question is a wire of resistance 10 ohm. A wire of resistance 10 ohm is bent to form a closed circle. एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम है और इसको एक क्लोज सर्कल में बेंड किया गया है. तो यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा और एक यहाँ रेजिस्टेंस होगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द डायमीटर रेजिस्टेंस ऑफ एंड ऑफ द डायमीटर. सो हमें डायमीटर के एंड पे रेजिस्टर निकालना है. तो अगर डायमीटर के एंड पे निकालना मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है.
So 1 upon R equivalent is equals to 1 upon 10 ohm plus 1 upon 10 ohm. तो R equivalent जो हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास 10 by 2, that is 5 ohm resistance ends of the diameter. Now two resistor of resistance 5 ohm 10 ohm are to be connected to a battery 6 volt obtain minimum करंट. तो अगर मिनिमम करंट निकालना है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस ज्यादा कब होता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है. तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 प्लस R2. तो R इक्वल इज टू 5 प्लस 10 ओम दैट इज 15 ओम. तो करंट कितना हो जाएगा I इक्वल टू V बाई R. V कितना है 6 अपॉन 15 दैट इज 0.4 एम्पियर minimum current to obtain इन सीरीज कॉम्बिनेशन. एंड मैक्सिमम करंट, तो अगर मैक्सिमम करंट की बात करेंगे तो उस समय पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. तो उस समय 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10. तो आर इक्वल कितना हो जाएगा सीधे 5 इंटू 10 अपॉन 15. सो 10 बाई 3 दैट इज 3.3 एम्पियर. तो मैक्सिमम करंट ऑपरेट करने के लिए हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करना होगा और मिनिमम करंट ऑपरेट करने के लिए हमें सीरीज कॉम्बिनेशन करना होगा. So how will you connect the resistors in each case? In first case, for maximum current, we will connect in series, or to find maximum current, we will connect in parallel. Next question, we have two identical resistors are connected in series and then connected in parallel. So find the ratio of heat of two cases. तो identical resistor मतलब दोनों का resistance same है. अगर हमारे पास two identical resistors, that is R1 equal to R2 are first connected in series. तो R equivalent कितना हो जाएगा हमारे पास 2 times of R हो जाएगा and then connected in parallel. तो उस समय R parallel के कंडीशन में क्या हो जाएगा R by 2 हो जाएगा. So find the ratio of heat. तो हमें पता है कि H is equals to होता है I square RT H1 R1 upon H2 is equals to I square I2T. फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू R1 2 टाइम्स ऑफ R बाई R बाई 2 दैट इज H1 is to H2 is 4 is to 1. Next question is a torch bulb is rated 5 volt and 500 milliampere. V दिया हमारे पास 5 volt and I दिया हमारे पास 500 milliampere. तो हमेशा मिली एम्पियर अगर जो भी दिया मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर तो हम लोग 500 इंटू 10⁻³ एम्पियर कर देंगे. अगर ये माइक्रो एम्पियर होता 500 माइक्रो एम्पियर तो हम लोग क्या करते हैं इसको 500 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर कर देते हैं. सो नीड टू फाइंड पावर. तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई. तो P इज इक्वल टू V कितना है हमारे पास 5 इंटू आई कितना 500 10⁻³ that is 2500 10⁻³ that is 2.5 watt. Now we will find resistance. So R is equals to V upon I. So V is 5 upon I is 500 into 10⁻³. That means 5 से 5 cancel हो गए. You get 1 upon 10. That is 0.1 ohm. Now we will find energy consumed when it is lighted for 4 hours. तो E is equals to P into T upon 1000. जब भी ऐसे R में क्वेश्चन दिया हो सीधे P into T upon 1000 करना है. तो P कितना है पावर कितना है हमारे पास 2.5 वाट इंटू R टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 hours अपॉन 1000. So 1 upon 100
kWh, that is 0.01 kWh. Next question is, an electric heater rated P1 is 880 watt, operates, time दिया है 6 hour per day, cost रुपीज दिया है 3 rupees per unit, और डेज दिया हुआ है 30 डेज। ऐसे क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला याद करिए, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी पावर इंटू टाइम इंटू डेज अपॉन 1000। सो E is equals to E is equals to P is 880 into time is 6, days is 30 upon 1000. So E is equals to 88 into 18 upon 10. Now जब एनर्जी आ गया तो सीधे हमें क्या करना है, इसमें कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। कॉस्ट कितना हमारे पास 3 रुपीज पर यूनिट इंटू 3। तो E is equals to 475.2 rupees total cost. Next question is, we have a circuit diagram A and B, हमारे पास दो टर्मिनल दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है। So we have two resistors, यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास 12 ohm and 6 ohm। 12 ohm and 6 ohm, 5 ohm, 4 ohm and 8 ohm। तो ये दोनों 12 ohm और 6 ohm किसमें पैरेलल में, इसको पैरेलल में जोड़ लेंगे। तो 1 upon R equivalent is equals to 1 upon 12 plus 1 upon 6। तो R equivalent is equals to 12 into 6 upon 18, that is 4 ohm। Now for B end, 1 upon R equivalent is equals to 1 upon 4 plus 1 upon 8, that is 4 into 8 upon 12, so 8 by 3। तो total resistance R equivalent is 4 plus 5 plus 8 by 3, that is 9 plus 8 by 3, 27 plus 8 by 3, so 35 by 3 ohm equivalent resistance from A to B। So we have another question for 5 marks। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसका बेसिक समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे करना है। तो हमारे पास दिया है 12 वोल्ट और ये पूरा नेटवर्क दिया है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इसका एक हम लोग रफ डायग्राम बनाएंगे। सो हमारे पास ये दो रेजिस्टर्स है वो सीरीज में होंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट दिस 15 ओम एंड 15 ओम, इसको हम लोग सीरीज में ऐड कर लेंगे। तो इसका मतलब ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका 30 है। नाउ 20 ओम से इसको और इसको हम लोग पैरेलल ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 20 इंटू 30 ऑन कितना हो जाएगा 20 प्लस 30, 20 प्लस 30, दैट इज 600 अपॉन 50, 12 ओम। तो इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 12 ओम आ गया। नाउ हमारे पास दिया है 20 ओम एंड 8 ओम। सो अब इन तीनों को सीरीज में जोड़ देंगे। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 20 प्लस 12 प्लस 20, दैट इज सॉरी 20 प्लस 12 प्लस 8, दैट इज
20 प्लस 20 40 ओम। टोटल नेटवर्क हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर टोटल 40 ओम। सो दिस इज फर्स्ट आंसर। नाउ करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हमें ईच रजिस्टर पर करंट निकालना है। नेक्स्ट टोटल करंट, टोटल करंट सीधे आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना हमारे पास 12 अपॉन आर कितना 40। सो 0.3 ampere is total current. Now we have two questions: total current through each resistor and total voltage drop each resistor. अब ये दो क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। बस आपको, हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया, दैट इज 40 ओम। टोटल करंट पता है 0.3, और हमें ये बात पता होना चाहिए कि सीरीज में करंट इन दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। और अगर ये पैरेलल दिया है तो दोनों का वोल्ट सेम होगा, इतना हम पता है आपको। सो ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 आपको ट्राई करना होगा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा है बट होल टॉपिक आपने इसमें कवर किया है। अगर आपने इसको सही से पढ़ा तो आशा है कि आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। नाउ in next class we will discuss about light. So अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।